উচিত কথা কইলে তো গুতা লাগবে, তখন তো মনে হবে যে না অ্যান্তন করি কবার ধরছে গা। অ্যান্তনে যদি চলতে থাকে তাহলে পরে সর্বপ্রথম ওই কবার চান যে গৌতম দেব হাটাও শিলিগুড়ি বাঁচাও, দেওয়ানিগিরি অন্য কেউ, বাড়ির মালিক অন্য কেউ, না হলে গৌতম দেবের মুখ থেকে অ্যান্তন ভাষা আসে নাকি? এটা মানা যায় যে আমার বাড়িতে যারা কাজ করে তারা সবাই চাকর বাকর, তারা সবাই রাজবংশী? এখান থেকে ক্লিয়ার বক্তব্য, এখান থেকে ক্লিয়ার বিষয় বোঝা যায়। তাই ভাবিত হচ্ছে যে রাজাগিরি করবে ওরা আর প্রজাগিরি করবে এখানকার সাধারণ মানুষ, না রাজবংশী কামতাপুরী সমুদায়ের মানুষ। তাহলে পরে এই গৌতম দেবের মতো মানসিগুলা শিলিগুড়ি নগর নিগমের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায়ও তাহলে পরে অন্তত পক্ষে কিন্তু সাজাটা পাবে। इशू तो है नहीं वोट लड़ने के लिए, तो क्या के लिए लड़ेंगे? तो भाई कोई ना कोई तो वजह बना लो, कोई ना कोई तो इशू करो। ठीक है कोई बात नहीं, राजवंशी कमतापुरी समुदाय का अलग कर दो, बंगाली का अलग कर दो, बिहारी का अलग कर दो, मरवाड़ी का अलग कर दो, फिर बंटवारा कर दो। दिलीप बर्मन मतो राजवंशी कम्युनिटी থেকে बिलोंग करा मानसी, कुछ दिन पहले ये दिलीप बर्मन को शोकॉस किया गया था। क्यों भाई, क्यों? हाल ही में दार्जिलिंग का जो कोर कमेटी है तृणमूल कांग्रेस का, वो भी निकाल चुका है। उसमें किसी का नाम है क्या? कोई राजवंशी या कमतापुरी कोई व्यक्तित्व का नाम है क्या? नहीं है। ये मुद्दा का बात है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि राजवंशी या कमतापुरी लोग को डिप्राइव किया जाए। अभी जो सिलीगुड़ी में जो अभी करप्शन या दुर्नीति चल रहा है, उसमें जब मुर्दा उठाया दिलीप बर्मन, फिर उन लोगों को, फिर दिलीप बर्मन को दबाने के लिए, फिर दिलीप बर्मन को रोकने के लिए कहा गया जब भाई तुम रुको या नहीं तो ये घर से चले जाओ। ये गवर्नमेंट अभी डिवाइड एंड रूल्स पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि भाई कमतापुरी को अलग कर दो, अलग कर दो, ये राजवंशी को अलग अलग कर दो, दोनों में फाइट लगेगा। अगर यूनिटी नहीं होगा तो ये लोग अपने अपने से लड़ेगा। যে মানসিগুলা কাজ করিবার গেছে তারা অন্তত পক্ষে ভালো আছে, সেই কথার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে তুলি কোয়া যায়। তাই এরকম শুভনন্দন ভালো আছেন তো, দেবেন তো কাজ। हम लोग ये कह सकते हैं कि राजवंशी या कामतापुरी समुदाय का लोग हम लोग अभी रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे तो एक साथ लड़ेंगे, खड़ा होएंगे तो एक साथ होएंगे, क्योंकि हम लोग डरते नहीं, लड़ाई करते हैं तो सामने से लड़ाई करते हैं, पीछे से नहीं, क्योंकि हम लोग সত্যি হবে ভাই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ওই কবার চাং এবং ওই জানেবার চাং এর সবচেয়ে কারণের বিষয়টা হলো, কারণ হলো সেটা হচ্ছে রাজবংশী কমিউনিটি এবং রাজবংশী সমুদায়ের মানসি। দেশি ভাষায় একটা কথা কইছে যে আমের সময় মাসি, কাঠলের সময় মাসি, আর আম ফুড়াইলে কিসের মৌসামসি। ভোট আছে মাল দাও সব ঠিক আছে, ভোট গেল সব ভুলে যাবে। ये सत्य भी है, हम बोलते हैं यूज कर रहा है। ये राजबंशी या कमतापुरी लोग को চিলা রায়ের যে সামরিক শক্তি আছে সেইটার স্টেটের তরফ থেকে সগাকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোটে, হ্যাঁ যে জায়গা গভর্নমেন্টেই কারাপ্টেড সেই জায়গায় সাধারণ চ্যাংড়া চেংড়িকে কী চাকরি দেবে? সব তো দুর্নীতিগ্রস্ত পরি হয়ে আছে। উত্তরবঙ্গের অবস্থা খুব শোচনীয় এবং খুব ভয়াবহ, চিন্তিত আমরা। দেশি ভাষায় এই জন্য একটা কথা কইছে যে তোমরা যদি মোর জন্যে হাঁটু জল অব্দি নামেন তাহলে মুই তোমার জন্য গলা জল অব্দি নামতে রাজি। কারণ ইয়ে করোনেশন সেকেন্ড ব্রিজ এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিলেও স্টেটমেন্ট আদৌ কি করে দিছে? এই উত্তরবঙ্গের মধ্যে রাজবংশী কামতাপুরী মানুষের সাথে বঞ্চনার যে শিকার, এর জবাবটা আগামী দিনে 2026 সালের বিধানসভার ভোটে রাজবংশী ও কামতাপুরী মানসিগুলা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে হিসাব বুঝিয়ে দেবে। এখানকার কিছু লিডার হরিয়ানা, দিল্লিতে সেটিং করে খবর নিচ্ছে যে ওখান থেকে বাংলা ভাষার জন্য অত্যাচারিত হওয়ার ধরছে কিনা। আবার কিছু রাজবংশী লিডারও ইয়ার মদত দেওয়ার ধরছে, কামতাপুরি কিছু লিডারও মদত দেওয়ার ধরছে যে ওঠে কোনা অত্যাচারিত হবার ধরছে কিনা। क्या आपको लगता है कि राजवंशी की जो पहचान है उसे बंगाली पहचान में मिला दिया जा रहा है? এইমস তো একটা ছিল এটা কোনা উত্তরবঙ্গকে দিবার বাদে, যে আন্দোলনটা বারবার উত্তরবঙ্গের প্রতিটা মানুষ করিবার ধরছে, শুধু রাজবংশী কামতাপুরি না হয়। ये एम्स का जो डिमांड है ना, सिर्फ यह राजवंशी या कमतापुरी समुदाय का लोग ये डिमांड नहीं करता है, ये उत्तर बंगाल का हर आदमी का ये डिमांड है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ अच्छा रहने के लिए हॉस्पिटैलिटी चाहिए। उत्तर बंगाल की राजनीतिक जमीन पर अगर बात करते हैं तो फिर से एक मुद्दा गहराया हुआ है और वो मुद्दा है पहचान की मुद्दा। जिस प्रकार से
इस बार केंद्र बना हुआ है सिलीगुड़ी नगर निगम का दिलीप बर्मन की जो बात सामने आई थी, दिलीप बर्मन को लेकर जो विवाद सामने आया था, उसी विवाद को लेकर कहीं ना कहीं फिर से एक बार राजवंशी समाज पहचान की मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहा है। राजवंशी समाज जो कि भाषा, संस्कृति और अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए सालों से लड़ रहा है, उसी राजवंशी समाज फिर से अब सड़कों पर उतरेगा कह सकते हैं, क्योंकि दिलीप बर्मन के साथ जिस प्रकार से आरोप लगे थे, उन्होंने बताया था और जो वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उनके साथ कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर परिषद कह सकते हैं और मेयर और डिप्टी मेयर के द्वारा उन्हें बाहर भेज दिया गया था बोर्ड मीटिंग के दौरान, उसे लेकर कहीं ना कहीं माहौल गर्म हो चुका है। और इस विषय पर हम विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजवंशी समाज से आने वाले एक शख्सियत जिनका नाम उत्तम कुमार बर्मन है और ये कूच बिहार जिले से रहने वाले हैं। हम साथ ही साथ बता दें कि राजवंशी समाज के लिए लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि आज हम इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से फिर एक बार पहचान की मुद्दा और कह सकते हैं राजवंशी समाज का क्या ये अपमान है, क्या विकास के नाम पर किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ पक्षपात हो सकता है, क्या एक प्रतिनिधि ऐसा है जो कि चुनाव जीतने के बावजूद अपनी बातों को नगर निगम के भीतर नहीं रह सकता, ये एक सवाल है। हालांकि हमारे साथ जो शख्स है उनसे बात करते हैं, हमारे साथ उत्तम कुमार बर्मन जी हैं, उनसे बात करते हैं। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से आप राजवंशी समाज के लिए आप लगातार आवाज़ उठाते हैं, आज क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी नगर निगम की विषयों को आप जानते हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से एक नेता के साथ और आपके ही समाज के एक नेता के साथ इस तरह की जो विवादित चीज़ हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं? पूर्वोत्तर भारत जो न्यूज़ है जो अभी दिख रहा है, सभी को नमस्ते এবং যায় যায় মুখ দেখিবাদ হচ্ছেন উত্তরবঙ্গের মধ্যে রাজবংশী কামতাপুরী সমুদায়ের মানুষগুলা সগাকে মোর তরফ থেকে হিয়া ভরা ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। আজই উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি যেটাকে দ্বিতীয় কলকাতা হিসাবে ধরা যায়, সেটকার নগর নিগমের চেয়ারম্যান গৌতম দেব যেভাবে রাজবংশী কমিউনিটি সমাজের মানসিগুলাকে প্রথমে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইর করে দেওয়া, দিলীপ বর্মনের মতো রাজবংশী কমিউনিটি থেকে বিলং করা মানসিক, তারপরে তার ভাষা ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল ভাষাতে যেভাবে এই রাজবংশী সমাজের কামতাপুরী সমাজের মানসিগুলাকে তিরস্কার করার যে একটা প্রয়াস, যে একটা চিন্তা ভাবনা এন্তনে যদি চলতে থাকে, তাহলে পরে সর্বপ্রথম ওই কবার চান যে গৌতম দেব হাটাও শিলিগুড়ি বাঁচাও। এই রাজবংশী এবং কামতাপুরী মানসিগুলার সাথে স্বাধীনতার পথ থেকেই যে বঞ্চিত যে অবস্থা চলে আশীর্বাদ হচ্ছে, তার প্রেক্ষাপট, তার বাস্তব উদাহরণ হিসাবে যদি ধরা যায়, তাহলে পরে শিলিগুড়ির যে ঘটনা দিলীপ বর্মনের সাথে, সেটা কিন্তু কোনো ব্যতিক্রম না হয়। তাই বাস্তব প্রেক্ষাপট, তাই এই রাজবংশী এবং কামতাপুরী বিরোধী যে চক্রান্ত, সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আজকে রাজবংশী এবং কামতাপুরী সমাজের যে আন্দোলন, এটা কিন্তু জারি থাকবে। दादा, ये रही सिलीगुड़ी नगर निगम की बात और हम आगे बात करते हैं राजवंशी समाज को लेकर। विशेष रूप से आप एक पेशा अगर बात करते हैं तो आप वकील के पेशे से हैं, तो आज कानून की किताब भी खोलेंगे। जैसा आपने देखा कि सिलीगुड़ी नगर निगम में एक नेता के साथ इस प्रकार से होता है, तो क्या इसमें क्या लगता है कि एक समाज की एक शख्सियत होने के नाते या आप एक कानून के घराने से आते हैं, तो उनके नाते इस प्रकार के कौन कौन से धारा लग सकते हैं? শিডিউল ট্রাইব শিডিউল কাস্ট প্রিভেন্সি অফ শিডিউল ট্রাইব শিডিউল কাস্ট প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্টের আওতায় এইটা 80 বার পায়। এই রাজবংশী এবং কামতাপুরী সমুদায়ের মানসিগুলা যেভাবে ছোট নজর বা ছোটোভাবে দেখছে, সেই ধারাটা কিন্তু লাগু হবার পায়। আর এই ধারাটা যদি লাগু হয়, তাহলে পরে এই গৌতম দেবের মতো মানসিগুলা শিলিগুড়ি নগর নিগমের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায়ও তাহলে পরে অন্তত পক্ষে কিন্তু সাজাটা পাবে। আইপিসির কিছু ধারা লাগু হওয়ার পায়, যেমনটা কি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড তৎকালীন সময়, এখন তো সেইটা বিএনএস হয়েছে, 500 লাগিবার পায়, ডিফামেশনের মামলা হবার পায়। একজন কার্যকর্তা, যে একজন সেখানকার চেয়ারম্যান, যে কাউন্সিলর, তাকে তো একদম করে ঘর থেকে বাইর করে দেওয়াটা ঠিক না, হয় না। কারণ সেও তো একজন নির্বাচিত সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্বাচন হয়, সেই জায়গাটা দেখেছে। কারণটা কি?
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ওই কবার চাং এবং ওই জানেবার চাং এর সবচেয়ে কারণের বিষয়টা হলো সেটা হচ্ছে রাজবংশী কমিউনিটি এবং রাজবংশী সমুদায়ের মানসিক। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় শুনলে অবাক লাগবে কি, तुमरागुलार माध्यम दिया आप ही के माध्यम से यह खबर हुआ है कि कुछ दिन पहले ये दिलीप बर्मन को शोकॉस किया गया था। क्यों भाई, क्यों? हाल ही में दार्जिलिंग का जो कोर कमेटी है तृणमूल कांग्रेस का, वो भी निकाल चुका है। उसमें किसी का नाम है क्या? कोई राजवंशी या कमतापुरी कोई व्यक्तित्व का नाम है क्या? नहीं है। यह मुद्दा का बात है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि राजवंशी या कमतापुरी लोग को डिप्राइव किया जाए। अब तो अभी दिख रहा है ना, तो ये बात है, ये मुद्दा है। लेकिन आवाज उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन होगा, आवाज हम लोग उठाएंगे तो तभी जाके ये बदलाव आएगा भाई। तो क्या आपको क्या लगता है कि सिलीगुड़ी नगर निगम में राजवंशियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है? हाँ, एक तरफ से तो ये है। आपका जो न्यूज़ अभी चल रहा है वो हम लोग तो दिख रहा है ना। तो हाल ही में जो घटना हुआ है सिलीगुड़ी का, उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए यह राजवंशी या कमतापुरी समुदाय का लोग दिलीप बर्मन के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, वो पुलिस प्रशासन आके फिर उनको उसमें से हटा दिया गया। फिर उत्तर बंगो संवाद की हिसाब से खबर से यह खबर आया हुआ कि उन लोगों के ऊपर केस डाला हुआ है। ये क्यों? ये आंदोलन, ये जो न्याय, ये जो जस्टिस, ये जो आवाज, ये दबाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि राजवंशी या कामतापुरी समुदाय का लोग हम लोग अभी रुकेंगे नहीं। लड़ेंगे तो एक साथ लड़ेंगे, खड़ा होएंगे तो एक साथ होएंगे, क्योंकि हम लोग डरते नहीं। लड़ाई करते हैं तो सामने से लड़ाई करते हैं, पीछे से नहीं, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हो भाई। क्या आपको लगता है कि उत्तर बंगाल की राजनीतिक में राजवंशियों को कहीं ना कहीं वो जगह नहीं मिला है अभी भी, या फिर मिला भी है तो उसका इस्तेमाल वो राजवंशी समाज के घराने से जो नेता बने हैं वो नहीं कर पाए हैं? नहीं, ये तो मुद्दा है ही नहीं। ये राजवंशी लोगों को जो अभी फिलहाल जो सीट मिल रहा है, जो एमएलए है, जो एमपी है, अब तो हाल ही में देखा हुआ है ना सिलीगुड़ी का दिलीप बर्मन का जो मुद्दा है। अभी वो लोग तो निर्वाचित होके अभी अपना घर में वो चेयरमैन के साथ मीटिंग वो बातचीत करने के लिए गया था। फिर अभी जो सिलीगुड़ी में जो अभी करप्शन या दुर्नीति चल रहा है, उसमें जब मुर्दा उठाया दिलीप बर्मन, फिर उन लोगों को फिर दिलीप बर्मन को दबाने के लिए फिर दिलीप बर्मन को रुकने के लिए कहा गया, जब भाई तुम रुको या नहीं तो ये घर से चले जाओ। এটাই মুদ্রা কথা। কারণ ইমরাগুলা চিন্তা ভাবনা করি ধরছে যে আমরাগুলা সিট দিম ঠিকই, আমরাগুলা কাজ করে জায়গা দিমো ঠিকই, কিন্তু দেওয়ানিগিরির করি পাবে না। দেওয়ানিগিরি অন্য কেউ, বাড়ির মালিক অন্য কেউ। না হলে গৌতম দেবের মুখ থেকে এমন ভাষা আসে নাকি? এটা মানা যায় যে আমার বাড়িতে যারা কাজ করে তারা সবাই চাকর বাকর, তারা সবাই রাজবংশী? এখান থেকে ক্লিয়ার বক্তব্য, এখান থেকে ক্লিয়ার বিষয় বোঝা যায়। তাই ভাবিত হচ্ছে যে রাজাগিরি করবে ওরা আর প্রজাগিরি করবে এখানকার সাধারণ মানুষ না, রাজবংশী কামতাপুরী সমুদায়ের মানুষ, যারা এডেকার আদিবাসী, যারা এডেকার ভূমিপুত্র মানছি, এটা অন্তত পক্ষে রাজবংশী কামতাপুরী সমুদায়ের মানছি মানি নেবে না। जैसा कि राजवंशी समाज है जो भाषा और संस्कृति और अपने अधिकार के लगातार लड़ाई लड़ रहा है, अभी फ़िलहाल की जो मौजूदा स्थिति है राजवंशी भाषा को लेकर, तो कह सकते हैं कि उसका अभी क्या प्रभाव है? क्या अब के युवा राजवंशी भाषा बोल रहे हैं, उनको वहाँ की संस्कृति, राजवंशी की संस्कृति जो है उसे अपना रहे? क्योंकि बहुत सारे युवा जो है उत्तर बंगाल की अगर बात करते तो यहाँ से कूच बिहार, अलीपुरद्वार जो ग्रामीण इलाके हैं, और यहाँ से युवा कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में चले जाते हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो किसी दूसरे राज्यों को चुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि भाषा और संस्कृति का असर पड़ रहा है उन पे? হ্যাঁ, এইটা তো একটা সবচেয়ে বড় বিষয়, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। শুনলে এইটা খুব ভালো লাগবে যে একটা সময় গিয়া, যখন আজকে থেকে 2000 আমরা যদি 11 বা 12 সাল ধরি, যেই সময়টায় মুই অন্ততপক্ষে কলেজত পড়ছুম, তখন আমরাগুলা ভাষা শিখিবার বাদে বা ভাষা আমার রাজবংশী ভাষা কোয়ার পাই নাই বলিয়া, তখন আমরাগুলা নিজেকে মনে হয়েছিল যে আমরাগুলা বোধহয়
ঠিকঠাক মতন বাংলা ভাষা কবার পাই না, কারণ উমরাগুলোর সাথে মিশিবার পাই না। কিন্তু आजकल जो चल रहा है ना, ये अपना कृष्टि, ये अपना संस्कृति, ये जो अपना लैंग्वेज, हम लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं। ये हाल ही में आपको शायद सुना ही होगा, आपको शायद पता ही होगा, ये जो सिलीगुड़ी का जो नगेंद्र रॉय है ना, पद्मश्री, तो इन्होंने हाल ही में अपना खुद लैंग्वेज या कृष्टि या संस्कृति या भाषा से रामायण रचना किया। तो ये बड़ी बात है। अभी हाल ही में पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी में जो अपना खुद का लैंग्वेज राजबंशी कामतापुरी, इसी में चर्चा हो रहा है। तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना, अष्टम तफसील में आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ये गवर्नमेंट अभी डिवाइड एंड रूल्स पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि भाई कामतापुरी को अलग कर दो, या राजबंशी को अलग कर दो, दोनों में फाइट लगेगा। अगर यूनिटी नहीं होगा तो ये लोग अपने से लड़ेगा, तभी जाके जो हम लोग अभी मांग रहा है, जो हम लोगों का डिमांड है, हम लोगों को यूनिटी होना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनाइटेड टू स्टैंड, तभी जाके हम लोगों का जो भी डिमांड है वो भी हम लोग पाएंगे। क्योंकि एक साथ चलते हैं तो भाई वो लोग मिलेगा। एकता में बल होता है ना। हाँ, एकता में बल होता है, यूनिटी में बहुत है। अच्छा ये बताइए कि क्या राजवंशी समाज जिस प्रकार से अलग राज्य की मांग कर रहा है, तो उससे क्या उसमें सच में लाभ होगा इससे? हाँ, ऑब्वियसली। ये राजबंशी कामतापुरी लोग जो अभी मांग रहा है ना, इन लोगों का ये अलग से नहीं मांग रहे, क्योंकि কুচবিহার একটা আলাদা রাজ্যই ছিল। মার্জার এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে যখন রাজ্যটা চলে যায়, তারপরে সেই রাজ্য চলে যাওয়ার পর কামরূপ, কামতাপুর, কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস হারে যায় সংস্কৃতি, আর বঞ্চিত হইতে থাকে এটকার মানসিগুলা। কারণ এটা আজকের দিনের ডিমান্ড নয়, এই ডিমান্ডটা সেই দিন ছিল যেই দিন কুচবিহার আলাদা রাজ্য ছিল। এটা আজকের डिमांड ना, ये तो डिमांड भाई पहले से भी था। ये आज जो भी अब दिख रहा है ना पॉलिटिक्स में जो चल रहा है कि अभी जो आवाज उठा रहे, ये हक का लड़ाई है, ये हक के लिए लड़ेंगे, ये हक का लड़ाई है। अच्छा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भाजपा का उत्तर बंगाल में कहीं ना कहीं दबदबा बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, तो क्या हम मान सकते हैं कि राजवंशी समाज इस वक्त भाजपा के को विकल्प चुन रहा है, और या फिर सिर्फ तृणमूल से नाराज़गी है? दोनों में कितना डिफरेंट है? क्या भाजपा को आप लोग विकल्प चुन रहे हैं, या फिर तृणमूल से अभी फिलहाल नाराज़गी है आप लोगों की, या विकल्प दोनों हैं? সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এটা শুনলে পরে তোমরাগুলো অবাক হবেন। আজকে এই বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলে যেভাবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটা মানসিক, মেডিকেল এবং ইকোনমি এবং কমিউনিকেশন থেকে বঞ্চিত করছে, তার মানে কিছু মানুষকে ভালো থাকিবার গেলে এডুকেশন সিস্টেমটা দরকার, কিছু মানুষকে ভালো থাকিবার গেলে তার কমিউনিকেশনটা থাকা দরকার, কিছু মানুষকে ভালো থাকিবার গেলে পয়সাটা থাকা দরকার। কারণ এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান সরকার আজ উত্তরবঙ্গের যেমন যুবকরা পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করিবার বাদে বাইরে যাবার ধরছে, তেমনি ঠিক না এডুকেশন সিস্টেম ঠিক আছে, না কমিউনিকেশন সিস্টেম ঠিক আছে। উদাহরণ হিসাবে যদি মুই তুলি ধরং, তাহলে পরে মুই কইম এইমস তো একটা ছিল, এটা কোনা উত্তরবঙ্গকে দিবার বাদে যে আন্দোলনটা বারবার উত্তরবঙ্গের প্রতিটা মানুষ করিবার ধরছে, শুধু রাজবংশী কামতাপুরি না হয়, ये एम्स का जो डिमांड है ना, सिर्फ यह राजबंशी या कामतापुरी समुदाय का लोग ये डिमांड नहीं करता है, ये उत्तर बंगाल का हर आदमी का ये डिमांड है। क्योंकि जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ अच्छा रहने के लिए हॉस्पिटैलिटी चाहिए। ये अभी जो फिलहाल जिस अभी गर्दी में है, ये लोग तो होने नहीं दिया, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करने के लिए उत्तर बंगाल में अभी जो करेंगे ना, ये लोग कभी भी होने नहीं देंगे। ठीक उसी में कोई किसी ना पॉलिटिक्स वो भी लगा रखेंगे। हाल ही में आपको शायद न्यूज़ से पता चलेगा, क्योंकि ये जो बंगाली लोग हैं अभी जो बाहर जा रहा है,
बोल रहा है कि भाई सिर्फ बंगाली हम लोग जब बोलेंगे तो तभी जाके हम लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहा है या शोषित कर रहा है। चल रहा है ना अभी, आपको तो जी। पता ही है। हरियाणा साइड हाँ में चल रहा है। हरियाणा। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, इशू तो है नहीं। वोट लड़ने के लिए तो क्या के लिए लड़ेंगे? तो भाई कोई ना कोई तो वजह बना लो, कोई ना कोई तो इशू करो। ठीक है कोई बात नहीं, राजवंशी कमतापुरी समुदाय का अलग कर दो, बंगाली का अलग कर दो, बिहारी का अलग कर दो, मरवाड़ी का अलग कर दो, फिर बंटवारा कर दो, फिर मुस्लिम लोग जो है वो उनको भी अलग कर दो। यानी ये कह सकते हैं कि उत्तर बंगाल में भाषा की राजनीति चल रही है। हाँ चल रहा है, ये कास्ट कम्युनिटी है सिर्फ। हम लोग तो जानते हैं ना, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं पॉलिटिक्स में, फिर भी तो अभी जो सोशल मीडिया, अभी जो टीवी में दिख रहा है, हम लोग को थोड़ा पता चलता है। लेकिन किसी का भी दम नहीं होता खुल्लाम खुल के ऐसे बोलने के लिए। लेकिन हम बोलते हैं क्योंकि किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, लेकिन बदला बना आना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि उत्तर बंगाल के जो लोग हैं उनका कहने का है, बहुत बार आरोप भी लगता है कि उत्तर बंगाल के लोग वंचित हैं, सारी जो मूल सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर गंभीर समस्या होती है, गंभीर बीमारी का अगर शिकार होता है, तो उसे दक्षिण भारत जाना पड़ता है, साउथ इंडिया जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है और वहाँ पर जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे यहाँ से, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बेंगलोर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोलकाता तक जाते हैं, या फिर यहाँ से अगर कूच बिहार की बात करते हैं, कूच बिहार से सिलीगुड़ी की ओर रुख करें। क्यों कूच बिहारी क्यों नहीं यहाँ के बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं? इसकी क्या वजह पड़ी? इसके वजह यह है क्योंकि अभी एक बात सुन के ना बहुत शक लगेगा, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में या उत्तर बंगाल में टी टूरिज्म टिम्बर है, लेकिन अभी जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो लोग बाहर जा रहा है, क्योंकि सोचना चाहिए ना, अगर जिस गर्दी में जो रहेगा उनको तो सोचना पड़ेगा। मुद्दा कथा हल যাই যে গর্দিত থাকবে সেই গর্দিত থাকিয়া ভাবা লাগবে যে উত্তরবঙ্গের মানসিকগুলো আজ কেন বাইরে যাবার ধরছে। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাটা চাই, আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা চাই, আমরা কমিউনিকেশন ব্যবস্থাটা চাই। আজ কোনো ভাই একটা সামান্য কাজ করিবার গেলে আমার দূর দূরান্তে যাওয়া হয় কলকাতা, এটা কোনো জুডিশিয়ারির এক্সাম দেওয়ার গেলে, ডব্লিউবিসিএস এর এক্সাম দেওয়ার গেলে যাওয়া হয় কলকাতা। শিক্ষা ব্যবস্থা, এডুকেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তো নাই, তা সাধারণ মানুষ কী করবে? বাইরে যাওয়া কারণ বাঁচি থাকা লাগবে। তো যদি ভাবতো সরকারের যদি সঠিক চিন্তা ভাবনা থাকতো, তাহলে পরে আজকের দিনে জায়গায় এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে জমি জায়গা মাটি ভিটা বেচেয়া এই চিকিৎসা করিবার বাদে বাইরে যাওয়ার লাগতো না। এই জমি জায়গা মাটি ভিটা বেচেবার কারণও, এই রাজবংশীদের জমি জায়গা না থাকার কারণও এটা সবচেয়ে একটা বড় বিষয়। কি করবে? उपाय নাই, পরিস্থিতি নেই। टीएमसी की ओर से अगर बात करते हैं तो टीएमसी ने राजवंशी समाज को देखा और कह सकते हैं कि यहाँ पर कूच बिहार जो विकास परिषद है उसमें राजवंशी नेताओं को भी कुछ पदों पर निर्वाचित किया, वहाँ पर रखा है। तो इन्हें कैसे देखते हैं? क्या राजवंशियों के लिए हित में वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं? উচিত কথা কইলে তো গুতা লাগবে, তখন তো মনে হবে যে না আয়ন্তন করি কবাদ ধরছে গা। সবচেয়ে বড় বিষয় উত্তরবঙ্গের মধ্যে রাজবংশী মানসিকগুলার বাদে বর্তমান সরকার अभी स्कूल खुला हुआ है, लेकिन स्कूल तो है, स्टूडेंट नहीं है, क्या करेगा? अभी डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है, लेकिन काम क्या है डेवलपमेंट काउंसिल का? ये जो लोग अभी जिसके साथ बैठ के हमारे राजवंशी कमतापुरी काउंसिल के बोर्ड के साथ बैठ के अभी जो फिलहाल राजवंशी कमतापुरी डेवलपमेंट के लिए अभी सोच रहा है, ये लोग तो भूल जाता है भाई वोट आएंगे, फिर एक साथ बड़ा पैसा बड़ा अमाउंट का डील होगा, फिर उसके बाद वोट चले जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे। मतलब देशी भाषा एक कथा कইছে যে আমের সময় মাসি কাটলের সময় মাসি, আর আম ফুড়াইলে কিসের মৌসামসি। ভোট আছে মাল দাও সব ঠিক আছে, ভোট গেল সব ভুলে যাবে। কারণ এই আন্দোলনগুলো যে ছিল, এই আন্দোলনগুলো যে ছিল, বিশ্ববীর চিলারয়ের মার্জার এগ্রিমেন্ট যে আন্দোলন ছিল, আলাদা রাজ্যর আন্দোলন ছিল, ভোটের সুড়সুড়ি ভোট চলে গেছে, এই আন্দোলনগুলো খতম হয়ে গেছে। কেমন করি হবে? কারণ সরকারেরই সুস্থ মানসিকতা নাই, ইমরাগুলা একসাথে জোটবদ্ধ করিয়া গোটা উত্তরবঙ্গের
মধ্যে রাজবংশী কামতাপুরি মানসিগুলার বাদে চিন্তা ভাবনা করবে। अच्छा, ये भी हम जानना चाहते हैं कि जो राजवंशी समाज कह सकते हैं उत्तर बंगाल के लिए किंग मेकर साबित हो सकती है किसी भी चुनाव में, वो राजवंशी समाज को कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करते आ रही है लगातार। पिछले कई दशकों से अगर बात करते हैं तो चुनाव के दौरान उनसे वादे किए जाते हैं और उन वादों से मुकर दिया जाता है। तो इस पर क्या सच्चाई है और क्या कहेंगे इस पर? এটা ভুল নয়, এটা সঠিক। ये सास है, ये सत्य भी है। हम बोलते हैं यूज कर रहा है। ये राजवंशी या कमतापुरी लोग को अभी सिर्फ वोट बैंक के लिए ব্যবহার कर रहा है, यूज कर रहा है। क्योंकि যদি কামতাপুরি রাজবংশী উত্তরবঙ্গের মানসিগুলা বেশি করে শিক্ষিত হয়, ভালো ভালো জায়গা যায়, তাহলে পরে এই মানসিগুলায় ভোট ব্যাংকের কাজ আগামী দিনে করবে না। কারণ যদি উত্তরবঙ্গের মধ্যে রাজবংশী কামতাপুরি মানসিগুলাকে নিয়ে ভাবতো, তাহলে পরে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমার ছাওয়াটা, আমার বাড়ির মাটার শরীরটা খারাপ, বাইরের রাজ্য চিকিৎসার বাদে যাওয়া না লাগিলায়, আজি আমার ছাওয়াটা সরকারি স্কুলত যে পড়ে ধরছি, স্কুল আছে ঠিকই, মাস্টার নাই, শিক্ষা ব্যবস্থা নাই, তাহলে পরে বেসরকারি স্কুলত ভর্তি করা না লাগিল হয়। কারণ যে ডিমান্ড ছিল, যে চাওয়া পাওয়াগুলো ছিল, স্টেট গভর্নমেন্টের তরফ থাকিয়া রাজবংশী সমুদায়ের জন্য কয়েকদিন আগত একটা চুক্তি করা হয়েছিল যে চিলা রায়ের যে সামরিক শক্তি আছে সেইটার স্টেটের তরফ থাকিয়া সগাকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোটে, হ্যাঁ, যে জায়গা গভর্নমেন্টেই কারাপ্টেড, সেই জায়গায় সাধারণ চ্যাংড়া চেংড়িকে কী চাকরি দেবে? সব তো দুর্নীতিগ্রস্ত পরি হয়ে আছে। উত্তরবঙ্গের অবস্থা খুব শোচনীয় এবং খুব ভয়াবহ। চিন্তিত আমরাগুলো, কারণ আমরাগুলো আওয়াজ তুলি তো, আমরাগুলো কই তো, ভাবিবার লাগবে। তাই আগামী দিনের জন্য চিন্তা ভাবনা করা লাগবে। जैसा कि आपने कहा कि वीर चिला रॉय के बारे में, तो राजवंशी वीर चिला रॉय के अगर बारे में बात करते हैं तो उत्तर बंगाल के यात्रा पर कह सकते हैं, उत्तर बंगाल के जब दौरान चुनाव थे, उस दौरान अमित शाह जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो वो आए हुए थे। तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि सेवक कोरोनेशन ब्रिज है, जो अल्टरनेट ब्रिज एक बनने वाला था, और उस ब्रिज को लेकर पिछले कई सालों से वादे किए जाते हैं कि अब जाकर बनेगा, अब जाकर बनेगा, और वहाँ के लोग बस आशा में है कि अब जाकर वो ब्रिज बनेगा। लेकिन उनका नाम भी रख दिया जाता है अल्टरनेट ब्रिज, जो कह सकते हैं अल्टरनेट जो ब्रिज बनने वाला है उस ब्रिज का नाम इनके नाम पर रखा जाता नहीं, यानी कह सकते हैं वीर चिला राय के नाम से ये ब्रिज का नाम रख दिया जाता है। लेकिन अभी भी वो ब्रिज नहीं बना। इस पर क्या कहेंगे? क्या अभी भी लोगों के साथ, लोगों के भावनाओं के साथ मजाक चल रहा है? ये विश्ववीर चिला रॉय हमारे सेंटिमेंट भी है, ये विश्ववीर चिला रॉय हमारे आइडियोलॉजी भी है, ये विश्ववीर चिला रॉय हमार संस्कृतिर मध्य सबचेয়ে বড় একটা ভালো জায়গা नाम आसे। ये विश्ववीर चिला रॉय क्षत्रिय भी है, हम क्षत्रिय भी है। ये विश्ववीर चिला रॉयर नामांकित जो कोरोनेशन सेकेंड ब्रिजेर कथा आज कोना उठे बात होच्छे, ये हाल ही में सिलीगुड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कम या कोई मुर्दा अगर उठाया जाता है तो कम करने के लिए वो कम करने के लिए जरूर करना चाहिए। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट कम करने दिया जाएगा तो तभी जाके ना कम होगा, क्योंकि हम देते हैं, हम तय है करने के लिए, तो आपको भी थोड़ा आना पड़ेगा ना सामने। देशी भाषाয় এই জন্য একটা কথা কইছে যে তোমরা যদি মোর জন্য হাঁটু জল অবধি নামেন তাহলে মুই তোমার জন্য গলা জল অবধি নামতে রাজি। কারণ ইয়ে করোনেশন সেকেন্ড ব্রিজ এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিলেও স্টেটমেন্ট আদৌ কি করে দিছে? স্পোর্টস হাব তো হওয়ার কথা, জায়গায় করে দিল না, কেমন করে হবে? কারণ আইনটা জানি, এখানে রুলস অ্যান্ড পলিটিক্স কিছু চলে, সে আইনটা করে না দিলে কেমন করে হবে? অন্যান্য জায়গায় তো আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছে, কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গের জায়গায় বুকে দাঁড়িয়ে আমরা বঞ্চিত, আমরা ডিপ্রাইভ, আমরাগুলা উত্তরবঙ্গের মানুষগুলা বলছি। आवाज़ तो उठबे भाई। क्या आपको लगता है कि राजवंशी की जो पहचान है उसे बंगाली पहचान में मिला दिया जा रहा है? हाँ, कोनो ना कोनो भावे तो এটা চলে যাচ্ছে, কিন্তু আজকের দিনে এখানকার রাজবংশী কামতাপুরি মানসিগুলা চাইছে যে নিজস্ব আইডেন্টিটি, নিজস্ব পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব কালচার, নিজস্ব কৃষ্টি। আর যার জন্যই মানুষ
আওয়াজগুলা তুলিবাদ হচ্ছে, যার জন্যই মানুষ আজি কোনো কথা কবার দিচ্ছে, যার জন্যই আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো একটা রাজবংশী গায়ক একজন যদি গান তোলে সেটাও ন্যাশনাল মিডিয়াতে বা কলকাতার মিডিয়াতে ভাইরাল হয়। আজই রাজবংশীর কোনো একটা মানুষই যদি তার নিজস্ব কৃষ্টি এবং নিজস্ব কালচার নিয়ে আওয়াজ তোলে তাহলে সেটাও সেই জায়গা গিয়ে স্ট্যান্ড হয়। যেমन हाल ही में सिलीगुड़ी का घटना आप तो देखा हुआ है ना, तो दिलीप बर्मन अभी प्रॉब्लम है, अभी पूरा राजवंशी कमतापुरी लोग खड़ा हुआ है उसके साथ। क्यों भाई, क्यों? जो यूनिटी अभी हो रहा है, खुद का पहचान मांग रहा है अभी, आइडेंटिटी क्राइसिस जो भोगना था वो तो फिर पास्ट का बात है ना। अभी हाल ही में पहचान चाह रहा है, आंदोलन हो रहा है, क्योंकि নিজের পরিচয়, নিজের কৃষ্টি, নিজের সংস্কৃতি, নিজের কালচার আইডেন্টিটি। রাজশাহী পঞ্চানন বর্মা আমাদের রাজবংশীদের মধ্যে গডস অফ ফাদার, বিশ্ববীর চিলারায়, যে গোটা পৃথিবীর মধ্যে সাহসিকতার প্রতীক। নরনারায়ণ এর রাজনীতি নগণ্য, অগণ্য, ভাবনাই যায় না। সব কিছু চিন্তা ভাবনা চেতন থাকা অবস্থায় নিজের আইডেন্টিটি, ইতিহাস আছে তো, ইতিহাস প্রতিটা মানুষের পরিচয় করায়। আর হামনাগুলা রাজবংশী কামতাপুরীর মানসিগুলা সেই ইতিহাস পরিচয়, সেই ইতিহাসের পরিচয়টা চাই, যে ইতিহাসটা আমার ছিল, যার জন্য এই আন্দোলনগুলো চলবে আগামী দিনে। क्या एनआरसी और सीए अगर लागू होता है पश्चिम बंगाल में या उत्तर बंगाल की अगर बात करें तो राजवंशी समुदाय पर कितना असर पड़ सकता है? না, কোনো কিছুই আসার পড়বে না, কোনো ব্যাপারই নেই। এনআরসি সিআর কি বলছে, আইন কি বলছে? 1949-এ আলাদা রাজ্য এই কুচবিহার থাকার পর যখন চলে গেল, পুরো স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে যুক্ত হলো, এই কুচবিহারের রাজবংশের বা কুচবিহারের সংস্কৃতি এবং কুচবিহারের কালচার, কুচবিহারের ইতিহাসের সাথে জড়িত থাকা প্রত্যেকটা মানুষই কুচবিহারের, কোনো রকম কোনো আশা করবে না। এবং মই এই ভিডিওর মাধ্যমে যায় পূর্বোত্তর নিউজের এই মিডিয়ার মাধ্যমে মোর রাজবংশী কামতাপুরী ভাই ও বন্ধু বান্ধব এবং প্রিয় মানুষগুলো দেখি বাধ্য হচ্ছেন। এই এনআরসি সিএ নিয়ে ভাই যেভাবে রাজনীতি চলছে, ইল্লার থেকে দূরে থাকো, কারণ আমার রাজবংশী কামতাপুরীর মানুষের মধ্যে, হিন্দু কোনো একটা মানুষের মধ্যে ইল্লার কোনো প্রভাব পড়বে না। পলিটিক্সত পা না দান, সমাজ বদলার চিন্তা ভাবনার একটা বারুদ তোমারও হওয়া হবে। चलिए अंतिम सवाल हम आपसे जानते हैं, आने वाले चुनाव में किस मुद्दे पर इस बार सबसे ज़्यादा आकर्षक होगा? कह सकते हैं आने वाले चुनाव को लेकर कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा गहराएगा? क्या पहचान, क्या भाषा, क्या संस्कृति, कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे ज़्यादा ये होगा? মোর তরফ থাকিয়া তো বর্তমানে ডিভাইডেড রুলস অ্যান্ড পলিটিক্স, কাস্ট পলিটিক্স। ওয়েস্ট বেঙ্গলে পশ্চিমবঙ্গের বুকত এনআরসি হবার দেবে না। উত্তম ব্রজবাসী যে কিনা একজন রাজবংশী লোক, আসাম সরকার তাকে এনআরসি দিছে। এখানকার কিছু লিডার হরিয়ানা, দিল্লিতে সেটিং করে খবর নিচ্ছে যে ওখান থেকে বাংলা ভাষার জন্য অত্যাচারিত হওয়ার ধরছে কিনা। আবার কিছু রাজবংশী লিডারও ইয়ার মদত দেওয়ার ধরছে, কামতাপুরী কিছু লিডারও মদত দেওয়ার ধরছে যে ওঠে কোনা অত্যাচারিত হবার ধরছে কিনা। কয়েকদিন আগত একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। মুই উমরাগুলাকে একটাই কথা কবার চান, এই কাস্ট পলিটিক্স বাদ দিয়ে না, যে মানসিগুলা কাজ করিবার গেছে তারা অন্ততপক্ষে ভালো আছে, সেই কথার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে তুলি কওয়া যায়। তাই এরকম শুভনন্দন ভালো আছেন তো, দেবেন তো কাজ। সাধারণ মানুষগুলো আজিকোনা বাইরের রাজ্যত কাজ করিবার গেছে নিজের পেটের তাগিতে, নিজের চাহিদার জন্য। এডে থাকলে বাচ্চা কাচ্চা ছাওয়া পোয়া সহ मुड़ी जाइतो। कास्ट पॉलिटिक्स अभी नहीं चलेगा, ये पुरानी का, ये पहले का बात है। अभी नया कुछ चाहिए, क्योंकि आज जो मुर्दा है कास्ट पॉलिटिक्स है, ये नहीं चलेगा। क्योंकि आज वेस्ट बंगाल का लोग ये समझा है, क्योंकि
भाई हम लोगों को जीने के लिए कुछ चाहिए, कुछ यानी काम। विकास के मुद्दे पर इस बार Yes. वोट होने वाला है। हाँ, विकास के मुद्दे पर কাস্ট পলিটিক্সও নেই চলেগা। কোথায় এনআরসি হবে না হবে ওইগুলো কি আর কেউ ধার দেবে না। তাই মুই তোমরাগুলাক লাস্ট একটা কথা কবার চাং, কোনো ধরনের কোনো রকমের কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নয়। প্রতিটা রাজবংশী কামতাপুরী সেন্টিমেন্টের মানুষ রাজবংশী কামতাপুরী মানসিগুলার বাদে থাকবে। আর এই উত্তরবঙ্গের মধ্যে রাজবংশী কামতাপুরী মানুষের সাথে বঞ্চনার যে শিকার, এর জবাবটা আগামী দিনে 2026 সালের বিধানসভার ভোটে রাজবংশী ও কামতাপুরী মানসিগুলা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে হিসাব বুঝিয়ে দেবে। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि हमारे साथ एडवोकेट उत्तम कुमार बर्मन जो कि कूच बिहार से जुड़े हुए थे, और हम लगातार कूच बिहार की यात्रा पर है। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ कह सकते हैं राजवंशी समाज से जुड़े लोग हो सकते हैं, या फिर यहाँ की मुख्य समस्या क्या है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए कूच बिहार पहुँचे हुए हैं। सभी विषयों और तथ्यों के साथ हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे हैं। ऑफ द कैमरा जब हम बात करते हैं तो यहाँ की समस्या को उनके साथ सुन रहे हैं। सारी समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ के जो प्रतिनिधि है, या फिर कह सकते हैं जो उन समाज के लिए खड़े रह रहे हैं, उन सभी लोगों से बात करके जान रहे हैं कि आखिरकार किन मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर अभी वाकई में बने हुए हैं। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए थे एडवोकेट उत्तम कुमार बर्मन जी, जो कि हमारे साथ इन सभी बातों का, सभी सवालों का जवाब दिए हैं। इन खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।